ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਣ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸਮਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦੋ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ 6 ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸੰਗਤ ਭਾਗ। 6 ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ? 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੋਣ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ AB, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ DE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ BC ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ? EF ਦੇ। ਤੇ AC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ? DF ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਣ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਣ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਣ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 6 ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ 6 ਭਾਗ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸਮਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? SAS, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਔਰ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਸਰਵਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ASA, ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ SSS, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਜਾ 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 ਸਰਵਸਮਤਾ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ RHS, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਕੋਣ ਕਰਣ ਭੁਜਾ ਸਰਵਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ SAS ਸਰਵਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ DEF ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ DE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਣ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ BC ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ SAS ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ASA ਸਰਵਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੁਜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ASA ਸਰਵਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੁਜਾ 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 SSS ਸਰਵਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ
एक त्रिभुज ABC है तो एक त्रिभुज DEF है। तो इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच मान लो साडा जिहड़ा AB भुजा है वो DE दे बराबर है, BC जिहड़ी भुजा है वो EF दे बराबर है ते AC जिहड़ी भुजा है वो DF दे बराबर है। तो असीं कहांगे SS सर्वसमता मापदंड के अनुसार त्रिभुज ABC है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। यानी कि नियम की कहता है, जेकर एक त्रिभुज दियां तीने भुजावां क्रमवार किसी दूसरे त्रिभुज दियां संगत भुजावां दे बराबर होण तां दोवें त्रिभुजां सर्वांग सम हुंदियां हन। साडा चौथा जिहड़ा नियम है वह है समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वसमता मापदंड। हुण इहदे विच की है, साडे कोल मान लो साडे कोल एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B 90 डिग्री है। इसे तरह साडे कोल एक त्रिभुज DEF है जिसका कोण E है जिहड़ा वो 90 डिग्री है। असीं कहंदे हां कि समकोण त्रिभुज ABC अते समकोण त्रिभुज DEF दे विच जिहड़ा इन्हां दा कर्ण है दोनों की लंबाई है जिहड़ी वो 5 सेंटीमीटर है, इसलिए AC जिहड़ा कर्ण है वो किस दे बराबर है, DF दे बराबर है। इसे तरह BC भुजा साडी 3 सेंटीमीटर है तो EF भी 3 सेंटीमीटर है। तो असीं कहंदे हां कि BC जिहड़ी भुजा है वो दूजी त्रिभुज दी भुजा EF दे बराबर है। एक कोण जिहड़ा दोनों दे विच B अते E है वो की है 90 डिग्री है। तो असीं कह सकते हैं कि RHS सर्वसमता मापदंड के अनुसार त्रिभुज ABC है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। तुसीं देख भी सकते हो कि ये त्रिभुज दूजी त्रिभुज नूं पूरी तरह नाल ढक लैंदी है। यानी कि सर्वसमता का मेन कंडीशन वही है कि उन्हां दा जिहड़ा माप ते आकार है वो की हुंदा है, बराबर हुंदा है। हुण अगर इस नियम की असीं परिभाषा लिखिए तो जेकर एक समकोणी त्रिभुज का कर्ण अते एक भुजा क्रमवार किसी दूसरे समकोणी त्रिभुज के कर्ण अते एक भुजा के बराबर होण तां दोवें त्रिभुजां सर्वांग सम हुंदियां हन। हेठ दिते त्रिभुजां दे किहड़े जोड़े सर्वांग सम हन असीं देखना है। सानू पहले अगर असीं जोड़े दे विच देखीए तां साडे कोल की है कि ये भुजा जिहड़ी है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है ते जिहड़ा कोण इन्हां दे विचकारला जिहड़ा कोण है वो भी की है, बराबर है। तो असीं कह सकते हाँ कि ये दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हन। अगर असीं नियम की गल करिए तो किहड़ा नियम आएगा, SAS, क्योंकि साइड एंगल साइड, यानी कि SAS नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजां की हन, सर्वांग सम हन। इसे तरह दूसरे जोड़े की अगर असीं गल करिए तो इस दे विच की है, कोण दो कोण बराबर हैं तो उन्हां दे विचकारली भुजा जिहड़ी है वो बराबर है। तो और किहड़ा नियम लग रहा है बच्चों, ASA कोण भुजा कोण सर्वसमता के नियम अनुसार ये दोनों त्रिभुजां की होणगियां, सर्वांग सम होणगियां। जेकर हुण इन्हां दोनों त्रिभुजां की गल करिए तो इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच ये दोनों भुजावां तां बराबर हैं, संगत भुजावां, पर इन्हां दे विचकारला कोण नहीं सानू बराबर दिता होया। तो असीं कह सकते हैं कि ये त्रिभुजां सर्वांग सम नहीं हैं। अगर असीं तीजी चौथे उदाहरण की गल करिए तो इस दे विच की है, साडियां ये भुजावां आपस च बराबर हैं तो ये भुजा आपस च बराबर है। तो असीं कह सकते हैं कि SS नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजां की होणगियां, सर्वांग सम होणगियां। आओ कुछ होर अभ्यास करिए। हेठ दो त्रिभुज दिते गए हैं जिस दे विच कोण B है जिहड़ा वो E दे बराबर है, AB जिहड़ी भुजा है साडी वो DE दे बराबर है। असीं इन्हां त्रिभुजां नूं हेठ लिखे मापदंडां नाल सर्वांग सम सिद्ध करना चाहुंदे हां। इंज करन लई होर किहड़ी सूचना की जरूरत होवेगी। हुण असीं पहला जिहड़ा मापदंड है वो है SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो अगर देखिए तो इसकी एक भुजा इस भुजा के बराबर है, साडा कोण है जिहड़ा वो भी बराबर है। तो सानू तीसरा जिहड़ा हैगा यानी कि ये जिहड़ी भुजा है BC वो किस दे बराबर सिद्ध करनी पेगी,
EF ਦੇ। ਜੇਕਰ BC EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SAS ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ASA, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ASA ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ A ਕੋਣ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ASA ਸਰਵ ਸਮਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ BC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SSS ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ASA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਜਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ N ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, V ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੁਜਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ N ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ASA ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SAS ਸਰਵ ਸਮਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, MK ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, TU ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ SAS ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ MK ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TU ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਿਕਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ABC ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਤੇ DBC ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ D ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ AD ਕੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਲੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ BC ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AD ਕੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ A ਤੋਂ BC ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ C ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ AB ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, P ਅਤੇ Q ਜਿਹੜੇ ਹਨ AB ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ A ਅਤੇ B ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ PQ AB ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੋ ਭਾਜਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ PQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AB ਦਾ ਕੀ ਹੈ,
समदोभाजक मतलब पहला असी सिद्ध करना है कि जिहड़ा AC है वो BC दे बराबर है। नंबर 2 इस दे विच असी ये सिद्ध करना है कि ये जिहड़ा कोण बन रहे हैं ये दोनों की हैं 90 डिग्री दे हैं। जेकर असी इन्हां विचों एक कोण नूं भी 90 डिग्री सिद्ध कर दईए तो असी कह सकते हैं कि जिहड़ा PQ है वो AB नूं लंब समदोभाजक करता है, यानी कि असी PCA जा PCB इन्हां दोनों विचों एक कोण नूं की शो करना है 90 डिग्री शो करना है। तो इस दे लई असी हल करते हाँ, असी की करते हाँ कि पहला त्रिभुज लैंदे हाँ, त्रिभुज PAQ ਅਤੇ त्रिभुज PBQ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ त्रिभुज ਲਈ है PAQ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ त्रिभुज ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PBQ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ त्रिभुजां ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ P ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ A ਤੇ B ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ ਜਿਹੜਾ वो किस दे बराबर है PB दे, या AP जिसदे किस दे बराबर है PB दे बराबर है। अगर असी दूजी गल करिए कि AQ है इसी तरह साडे कोल BQ दे बराबर है। इसी तरह साडे कोल जिहड़ी PQ है ये दोनों दे विच की है सांझी भुजा है। तो हुण असी कहा भी दोनों त्रिभुजां दियां 3 संगत भुजावां बराबर हैं, तो असी कह सकते हाँ कि SSS नियम के अनुसार जिहड़ी त्रिभुज PAQ है ये सर्वांग सम है त्रिभुज PBQ। हुण जेकर ये त्रिभुजां सर्वांग सम हैं तो इन्हां दे बाकी संगत भाग जिहड़े 3 कोण बचते हैं वो भी की होणगे बराबर होणगे। तो असीं कह सकते हैं कि ये जिहड़ा कोण है ये इस कोण दे बराबर होवेगा। कोण 1 बराबर है कोण 2 दे, तो असीं कह सकते हैं इसलिए कोण 1 है जिहड़ा साडा वो कोण 2 दे बराबर है। हुण असीं त्रिभुज लैंदे हां PAC ਅਤੇ त्रिभुज PBC। ਅਸੀਂ ये दोनों त्रिभुजां लेके करते हाँ, एक ये त्रिभुज ਲਈ है और एक मैं त्रिभुज ले रहा हाँ। इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच की है बच्चों जिहड़ा PA है वो फिर किस दे बराबर है PB दे बराबर है। कोण 1 असी कोण 2 दे बराबर सिद्ध किया है ते होर की बराबर है PC बराबर है PC। ये दोनों दे विच की है सांझी भुजा है। तो असी कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज PBC। जे दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हैं तो इन्हां दे बाकी संगत भाग भी की होणगे बराबर होणगे, यानी कि AC है जिहड़ा वो किस दे बराबर होएगा BC दे। ये साडा जिहड़ा पहला पार्ट सी असी सिद्ध करता कि C है जिहड़ा वो AB दा की है मध्य बिंदु है। हुण ये असीं सिद्ध करना है कि ये जिहड़ा कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण की है 90 डिग्री दे हैं। हुण असीं ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजां अगर सर्वांग सम हैं तो ये दोनों कोण की होणगे बराबर होणगे, यानी कि कोण PCA है जिहड़ा वो किस दे बराबर होएगा कोण PCB दे। पर ये रेखी जोड़ा है तो असीं कह सकते हैं कि PCA प्लस PCB ये दोनों कोणां दा जोड़ कितना होवेगा 180 डिग्री। तो असी लिख सकते हैं कि कोण PCA प्लस कोण PCA बराबर है 180 डिग्री और कोण PCA बराबर है 180 डिग्री बटे 2 बराबर है 90 डिग्री। तो असी ये भी सिद्ध करता कि ये कोण की है 90 डिग्री का है। तो हुण असी कह सकते हैं कि जिहड़ा PQ है वो AB दा की है लंब समदोभाजक है। साडी अगली उदाहरण है AD समदोभुजी त्रिभुज ABC दा शिखर लंब है। सानू दिता भी जिहड़ा AD है वो शिखर लंब है, तो मतलब ये जिहड़ा कोण है वो किन्ने दा है 90 डिग्री दा है, जिस विच AB जिहड़ी भुजा है वो AC दे बराबर है, क्योंकि समदोभुजी दियां 2 भुजावां की हुंदियां हन बराबर हुंदियां हन। तो सानू दिता कि AB जिहड़ी भुजा है वो AC दे बराबर है। सिद्ध करो कि AD BC नूं समदोभाजक करदा है, यानी कि असी ये शो करना है एक तो जिहड़ा BD है साडा वो DC दे बराबर है, एक AD कोण A नूं समदोभाजक करदी है, यानी कि अगर असी इहनूं कोण 1 मान लीए तो कोण 2, तो असी ये सिद्ध करना है कि कोण 1 है जिहड़ा वो कोण 2 दे बराबर है।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ त्रिभुजां ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ त्रिभुज ABD ਅਤੇ त्रिभुज ACD ਵਿੱਚ देखो बच्चों इन्हां दोने त्रिभुजां दे विच है एक तां सानू भुजा बराबर दित्ती हुई है क्योंकि ये सम दो भुजी है AB बराबर है AC। नंबर 2 साडे कोल की होगा AD की है दोनों च सांझी भुजा है। ये कोण दोनों दे विच की है 90 डिग्री है तो असीं RHS नियम कीता सी समकोण एक कारण ते एक भुजा जे साडा बराबर होवे तां RHS नियम अनुसार ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD है जी वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। सानू पता भी जेकर दो त्रिभुजां सर्वांग सम हैं ये दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हैं तो उन्हां दी बाकी जिहड़े संगत भाग हैं वो भी बराबर होणगे तो असीं कह सकते हैं इसलिए BD है जिहड़ा वो साडे कोल DC दे बराबर होएगा। उस तो बाद असीं कौन हैं जिहड़े कौन 1 2 दी असीं गल कर रहे सी कौन 1 है जिहड़ा वो कौन 2 दे बराबर होवेगा। साडी अगली उदाहरण है कि त्रिभुज ABC दियां दो भुजावां AB BC अते मध्यिका AM क्रमवार त्रिभुज PQR दियां भुजावां PQ अते QR अते मध्यिका PN दे बराबर हैं। सिद्ध करो कि एक तां असीं इन्हां दोने त्रिभुजां नूं सर्वांग सम करना है एक ये दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध करना है। आओ असीं अपना सवाल करते हाँ। सानू देखो ये दिता है भी दो भुजावां एक तो AB है जी PQ दे ते जिहड़ी QR है वो BC दे बराबर है एक इन्हां दे शिखर लंब है जिहड़े वो बराबर हैं। असी हुण की करना है त्रिभुज ABM नूं सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज PQN। तो असी ये दोनों त्रिभुजां दे विच देखते हैं। पहलां तां असी ये करते हैं भी जिहड़ी BC भुजा है वो सानू किस दे बराबर दिती हुई है QR दे। जेकर असी हाफ कर दिए BC बराबर है हाफ QR। हुण सानू पता भी BC नूं अगर असी हाफ करिए तो किस दे बराबर आएगा BM बराबर है इस साइड की आ गया QN क्योंकि जिहड़ी अपना मध्यिका है वो की करती है सामने वाली जिहड़ी भुजा है इस दे मध्य बिंदु नाल मिलती है। M जिहड़ा है वो BC का मध्य बिंदु है ते N है जिहड़ा QR दा मध्य बिंदु है। तो हुण असीं कह सकते हैं भी त्रिभुज ABM अते त्रिभुज PQN विच ये दोने त्रिभुजां दे विच की है एक तां AB है जिहड़ा वो PQ दे बराबर है AM है जिहड़ा वो PN दे बराबर है। ये दोनों चीज़ां सानू दित्तियां गईयां हन। उस तो बाद ये असीं सिद्ध करिया है कि BM है जिहड़ा वो किस दे बराबर है QN दे। तो SS नियम अनुसार त्रिभुज ABM है जिहड़ी वो सर्वांग सम होएगी त्रिभुज PQN दे। इस तरह अगर ये सर्वांग सम हैं तो इन्हां दे आ जिहड़े दोनों कौन हैं असीं कौन 1 अते 2 कौन की गल करते हाँ भी कोई होणगे साडे बराबर होणगे। तो हुण असीं दूजे पार्ट की गल करते हाँ कि त्रिभुज ABC अते त्रिभुज PQR विच हुण इन्हां दोनां दे विच सानू ये तां बराबर दिता होया कि AB बराबर है साडा PQ दे एक सानू BC जिहड़ी भुजा है वो किस दे बराबर दिती हुई है QR दे। एक इन्हां दे विचकारला कौन असीं सिद्ध किया भी कौन 1 बराबर है कौन 2 क्योंकि असीं इन्हां दोने त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध किया सी तो इन्हां दे जिहड़े संगत भाग हैं कौन 1 है जिहड़ा कौन 2 दे बराबर होवेगा। तो असीं कह सकते हाँ किहड़ा नियम है बच्चों ये SAS नियम अनुसार त्रिभुज ABC है जिहड़ी वो सर्वांग सम होएगी त्रिभुज PQR दे। इदां ही साडी अगली उदाहरण है कि ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है जिस विच AB बराबर है AC AP BC उत्ते लंब खिंच के दर्शाओ कि कौन B बराबर है कौन C। बच्चे दा हिंट मैं दिंदा तुसीं आप करना है। ये क्वेश्चन असीं कीता भी है इस दे नाल दा कि ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है। समदोभुजी का मतलब AB है जिहड़ा वो AC दे बराबर है। असीं A तो की खिंचना है लंब खिंचना है P
किस दे उपर BC दे उपर। असी ये सिद्ध करना है कि कौन B है जिहड़ा कौन C दे बराबर है। असी किता भी त्रिभुज ABP ले लो, एक APC ले लो, इन्हां दोने त्रिभुजां दे विच तुसी सिद्ध कर दो भी जिहड़ा AB है जिहड़ा वो AC दे बराबर है, सानू दिता क्योंकि इस की है समदोभुजी है। उस तो बाद AP दोनों च विच की होएगा सांझा होवेगा। उस तो बाद असी ये भी कह सकते हाँ कि उन्हें किहड़ा नियम बन रहा साडा RHS नियम, क्योंकि इन्हां दोनों दे विच एक कोण की है 90 डिग्री। असी किता सी अगर दो समकोणी त्रिभुजां दे विच कर्ण ते उन्हां दी एक होर भुजा बराबर होवे तां RHS नियम अनुसार ये दोनों त्रिभुजां की होणगियां सर्वांग सम होणगियां। जे सर्वांग सम हन तां इन्हां दा कोण B है जिहड़ा वो किस दे बराबर होएगा, कोण C दे। बच्चों एक मेरी सम दो भुजी त्रिभुज है, इस दे ये दोनों भुजावां की हन बराबर हन। तो अगर असी देखिए कि ये कौन है जिहड़ा ये साडा की बन रहा अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री का बन रहा है, तो इस साइड भी एक कौन किन्ने दा बन रहा 70 डिग्री का। तो यदा मतलब इन्हां दे विच की संबंध है भी समदोभुजी, यानी कि अगर किसी त्रिभुज दे विच दो भुजावां बराबर होण तां उन्हां दा जिहड़े सन्मुख कोण हन वो भी की हुंदे हन, बराबर हुंदे हन। यानी कि समदोभुजी त्रिभुज दियां बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण की हुंदे हन, बराबर हुंदे हन। जिस नूं भी असी सिद्ध करना है असी की करदे हां A तो लंब खिच्चदे हां, AP कह लो या AD कह लो, किस दे उपर BC दे उपर। फिर असी की करना है कि AB है जिहड़ी वो AC दे बराबर है। उस तो बाद AP दोनों च की है सांझी भुजा है, ते कोण जिहड़ा 1 ते 2 है दोनों दे विच की है 90 डिग्री है। तो असी कह सकते हैं कि RHS नियम अनुसार त्रिभुज ABP है जिहड़ी वो सर्वांग सम होएगी त्रिभुज ACP दे। जे सर्वांग सम हन तो इन्हां दे बाकी संगत भाग यानी कि कोण C है जिहड़ा वो कोण B दे बराबर होवेगा। यानी कि असी कह सकते हाँ कि समदोभुजी त्रिभुज दियां बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। असी इहदा कन्वर्स है जिहड़ा वो भी कह सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज दियां बराबर कोण अगर B कोण C दे बराबर है तो उहदियां सन्मुख भुजावां भी की हुंदियां हन, बराबर हुंदियां हन। त्रिभुज विच असमानतावां। बच्चों जिवें असी कहंदे हां कि जिहड़ी 4 संख्या है वो संख्या 3 तो वड्डी है, इसे तरह अगर असी दो लाइनां नूं कंपेयर करिए तो तुसीं देख के दस सकते हो कि जिहड़ी दूजी लाइन है वो पहली लाइन तो की है वड्डी है। इसे तरह अगर असी कोणां दी गल करिए तो असी देख के भी दस सकते हाँ कि जिहड़ा ये कोण है ये दूजे कोण तो की है वड्डा है साडे कोल। तां त्रिभुज दे विच असमानतावां अगर असी इसी तरह त्रिभुज की गल करिए कि त्रिभुज दे विच असमानतावां भी अगर ABC त्रिभुज है, एक साडी DEF त्रिभुज है, ये दोने त्रिभुजां नूं असी देख के ही दस सकते हाँ कि ये दोने त्रिभुजां दे विच जिहड़ी त्रिभुज वड्डी है साडी, तो असी इहदे विच देख के ये दस सकते हाँ कि त्रिभुज जिहड़ी ABC है इसका जिहड़ा खेत्रफल है वो त्रिभुज DEF तो की है वड्डा है। यानी कि त्रिभुज ABC है जिहड़ी वो त्रिभुज DEF तो की है वड्डी है। हुण मेरे कोल ABC एक त्रिभुज है ते अगर मैं इसकी AC जिहड़ी भुजा है उसनूं वधावां, हुण देखो बच्चों जिहड़ा पहला जिहड़ा कोण बन रहा सी साडे कोल वो कोण किन्ना बन रहा सीगा 60 डिग्री का, पर जेकर मैं इसकी जिहड़ी AC भुजा है उसनूं थोड़ा वधा दईए, इसनूं की करिया सी A' कर लिया, तो असीं देख सकते हैं कि पहला जिहड़ा कोण सी वो 60 डिग्री का बन रहा सी ते हुण जिहड़ा कोण है वो किन्ने दा बन रहा 70 डिग्री का। अगर मैं इसकी भुजा नूं होर वधा दा ते हुण कोण किन्ने दा हो गया 80 डिग्री का। यानी कि अगर असीं किसी त्रिभुज की एक भुजा नूं वधांदे जांदे हां तां उसदा जिहड़ा सन्मुख कोण है वो भी की होवेगा वड्डा हुंदा जावेगा। इसी दे बेस ते साडे कोल दिखाओ कि समकोण त्रिभुज विच कर्ण सब तो लंबी भुजा हुंदा है। ये तुसी आप अपने अध्यापकों की सहायता दे नाल क्वेश्चन करने हैं ते मैनूं विश्वास है कि अज जिहड़े असीं नियम किते हैं असीं सर्वसम्मता दे जिहड़े 4 नियम किते हैं वो सारिआं नूं समझ आ गए होणगे
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।